Everyone, welcome to Shri Shri Vidyapith School. So this is our second video of the chapter named Integers. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं and what is integers all about. Then we have discussed about some basic rules of adding and subtracting integers. And at third we have discussed about some additive properties of the integers. And finally we have discussed about integers sign, that while adding and subtracting, multiplying and dividing, how the sign of the integers being applied on the numbers. So the topics which we will discuss today is multiplication properties and zero. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज एंड जीरो. So basically there are some properties while multiplying the integers which we have to keep in mind. The first property is, पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसे सेम हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड रिपीटेड एडिशन प्रॉपर्टीज. इन द सेम वे the properties were also same in the case of multiplication properties. First property which we have studied is commutative property. So while studying additive properties हमने क्या पढ़ा था कि a plus b is equals to b plus a. Since it is multiplication properties, तो इसका रूल क्या है, a multiplied by b is equals to b multiplied by a. उसको कैसे समझेंगे? सपोज अगर मैं कोई दो नंबर लूँ, जैसे कि 6 multiplied by 2 या फिर 2 multiplied by 6, दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा. 6 into 2 is 12 and 2 into 6 is also 12. Okay, so commutative property में a multiplied by b is equals to b multiplied by a. So the next property is associative property. बिल्कुल सेम हमने जैसे एडिटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा था वही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में भी एप्लीकेबल है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो व्हाट इट स्टेट्स, सपोज a multiplied by b multiplied by c is equals to a multiplied by b multiplied by c. What I have written on the board, a multiplied by b into c means, which is in bracket, b into c is equals to a multiplied by b which is in the bracket into c. So इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज हमारे पास कोई तीन नंबर है, सपोज से 2 multiplied by 6 multiplied by 3.
b इंटू सी मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इन द ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? एक तो तरीका ऐसा है कि आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो भी आंसर आएगा उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, मीन्स 2 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 18 इंटू 2 इज 36। या फिर हम इस रूल से भी कर सकते हैं, मीन्स इफ वी टेक इन द ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 and outside it will be 3, means 6 into 2 is 12 and 12 multiplied by 3 is equals to 36। so हम a multiplied by b into c करें या फिर a multiplied by b into c करें तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। So there is a thing which is not a property but वो हमें ध्यान में रखना है। That suppose minus 2 upon into minus 5, sorry minus 2 into minus 5 into 3। तो इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम 2 into 5 कर लेंगे, मीन्स 2 into 5 is 10। so minus minus is always plus। we have to keep in mind that while multiplying two integers we have to follow the basic rule, means minus minus equals to plus। तो यहाँ का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, and into 3 it is, so 3 भी पॉजिटिव में है and the 10 is also in positive, तो 10 3 is 30। so in this way we will multiply the numbers if they are in, means if there are 3 numbers we will multiply in this way। सब जो हमारा लास्ट इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है हम उसको समझेंगे, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? It is in this form as that a into p plus c is equals to a into b plus a into c। मीन्स से अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, 2 into 4 plus 7। तो बेसिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका है कि आप पहले 7 plus 4 इक्वल्स विच इज़ 11 एंड उसको जो भी नंबर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इसका एक और प्रोसेस भी है विच इज़ पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम लोग 2 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे। इसमें हम करते हैं 4 2 8। फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस, 2 into 4 plus 2 into 7 means 4 2 8 and 7 2 14।
So 8 plus 14 is 22. So in this way we can do the sum like means a into b plus a into c. So in this way the distributive property is applied while multiplying two integers. So इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का जो पॉइंट है वो हो जाता है कंप्लीट. So हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 0. तो हम इस पॉइंट में देखेंगे कि अगर हम किसी नंबर को या फिर किसी इंटीजर को 0 से ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है. लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द एडिशन. अगर हम सपोज कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं मीन्स 6 प्लस 0 मीन्स इसका तो आंसर सिंपल है, आपको पता ही होगा. 6 प्लस 0 इज 6 ऑफ कोर्स. तो बेसिकली हम अगर किसी इंटीजर को किसी इंटीजर को 0 से प्लस ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो वही इंटीजर इटसेल्फ होता है. या फिर से अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर लेते हैं मीन्स -2 अपॉन प्लस 0 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा. 0 -2 प्लस 0 इज -2. So in this way if we add any integer with 0 its result will be the integer itself. And in the same way, suppose if we add an integer with 0, say 0 minus 6 plus 6, इसका भी आंसर क्या होगा. That integer itself. Means if we add 0 with an integer or if we add an integer with a 0, the result will be the integer itself. अब आते हैं सब्सट्रैक्शन में. सब्सट्रैक्शन में बेसिकली सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं मीन 6 माइनस 0. इसका आंसर क्या होगा. 6 माइनस 0 इज 6. एंड से अगर हम दूसरे किसी नेगेटिव इंटीजर को लेते हैं से -2 माइनस 0, इसका आंसर क्या होगा. 2 माइनस 0 इज -2 ऑफ कोर्स. सो इसी तरह से अगर हम किसी इंटीजर को 0 से अगर सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. वो इंटीजर खुद. मीन्स इफ वी सब्सट्रैक्ट एन इंटीजर विद 0 द रिजल्ट विल बी द इंटीजर इटसेल्फ. एंड इन द सेम वे इफ but if we means subtract an integer with 0, its result will be minus
whatever the integer it is. Here it is -6. Okay, so if we subtract an integer with the 0, its result will be the integer itself, and if we subtract an integer with the 0, its result will be the means the number, it's means the negative sign with included in it. And say अगर हम 0 -2 करते हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस माइनस इज प्लस, तो 0 + 2, द आंसर विल बी 2. सो इन दिस वे अगर हम 0 से किसी इंटीजर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका साइन में चेंज आएगा. मीन्स अगर हम पॉजिटिव इंटीजर यहाँ लेते हैं सिन, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड अगर हम नेगेटिव इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करते हैं 0 से तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. तो इस तरह 0 लोग सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में यूज करते हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर को से कोई दूसरा इंटीजर लेते हैं, से 7 मल्टीप्लाइड बाय 0, इसका आंसर क्या होगा? सिंपली एनी नंबर डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, नो मैटर्स, इट्स रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. Say here -2/0, it will also be 0, and -5/0 is also be 0. So if we multiply an integer with the 0, its result will always be 0. So our final one is division. So अब डिवीजन में क्या होते हैं? सी, अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो है अनडिफाइनेबल. इसका साइन ऐसा होता है बेसिकली. ओके, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, इट विल बी अनडिफाइनेबल, which means it cannot be defined. से अगर कोई नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, उसके केस में भी हमें अनडिफाइंड नंबर मीन्स अनडिफाइनेबल ही मिलेगा. Means when once we divide a number with the 0, its answer will be undefinable. So what if we divide 0 with an integer? Means say अगर हम 0 divided by any integer, means say 6 करते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा? Its result will always be 0. Either it is positive or negative integer, no, it doesn't matters. Its result will always be 0. So -2 f is 0/-3, 0/100. Okay, so इसका result always be, its result always be 0. So इस तरह हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में 0 का रोल देख लिया.
और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद अगर आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो आपको थोड़ा इजी लगेगा। सो इन दिस वे our this chapter is completed. If you have any doubt, any queries, you can demand for it. आपके डिमांड में वो जो आपका डाउट है वो यहाँ करवाया जाएगा। So in this our chapter is complete. I hope you have enjoyed the video. So I will be back soon with the next chapter. Until then, take care.